Hello, my dear students. Welcome to mathematics class. Dear students, today we are going to start unit 10 of your NCERT book, and the name of the unit is circles. So, let us first start some basics of circles. So, we have a circle. हमारे पास एक सर्कल है. We want to draw a line or line segment भी बोल सकते हैं. तो we have three ways to represent a line. एक तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ लाइन. अ लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय एंडिंग विद एरोज बिकॉज वी कैन एक्सटेंड इट इंडेफिनेटली. तो एक तो मैं लाइन को ऐसे बना सकती हूँ, दूसरा मैं लाइन को इस तरह से बना सकती हूँ. द फर्स्ट लाइन, दिस इज द फर्स्ट लाइन, इट इज़ नॉट एट ऑल इंटरसेक्टिंग द सर्कल. ये सर्कल को टच नहीं कर रही है. दिस इज जस्ट अ लाइन. देन द सेकेंड लाइन is intersecting the circle at only one point. तो ये one point पर intersect कर रही है. Then let me draw the third line like this. So this is a third line. It is intersecting the circle at 2 points. So you can see the difference. This is just a line. This is the line which is intersecting the circle at 1 point. This is a line which is intersecting the circle at 2 points. So dear students, the line which is intersecting the circle at 1 point is known as a tangent to a circle. उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? Tangent to a circle. And the line which intersects the circle at 2 points is known as secant. You have heard these words in trigonometry. Tangent is the line which intersects the circle at 1 point, and secant is the line which intersects the circle at 2 points. बिकॉज दीज आर द लाइन्स. और यहाँ पर मैं एक और ये बना रही हूँ. सी, आई एम नॉट पुटिंग एनी एरोज एट द एंड ऑफ दिस लाइन. दैट मीन्स इट हैज़ एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल. तो ये भी ऐसे ही है. इट इज़ इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, बट दिस इज़ नॉट अ लाइन. तो जो लाइन नहीं है, जो सिंपल एक सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज नोन एज कॉर्ड. उसे बोलेंगे कॉर्ड. This is secant. ये होता है secant. This is secant and this is tangent. तो I hope the concept is clear to you. After this, dear students, I am making it again a tangent. ये मैंने एक tangent बना दिया. It is intersecting the circle at A point. This A point जहाँ पर ये intersect करता है, इस point को हम बोलते हैं point of contact. क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा सर्कल को. दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट, राइट? एंड दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज नोन एज रेडियस. एंड a line segment which passes the circle through the center and intersecting the circle at 2 points is known as diameter. You all know about these things. So once again I am revising all these things. तो ये आपको पता होना चाहिए. This is point of contact. So note down this definition. Tangent to a circle, a line or line segment intersecting the circle at only one point is known as tangent to a circle. And what do you mean by point of contact? The tangent where it intersects the circle is known as point of contact. So point of contact, point at which point, not points, point at which tangent intersects the circle. तो यहाँ क्या लिख देंगे? Intersects the circle is known as point of contact. Note down both the definitions. Now let's do theorem number 10.1. which is very, very important. Now, theorem 10.1, page number 208. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Dear students, before starting the theorem, let me explain you the meaning of the statement. The tangent at any point to a circle. So, here we have taken a tangent, this AB. स्मॉल पार्ट को मैंने नाम दे दिया है ए बी, टेंजेंट टू अ सर्कल. बोल रहे हैं कि ये जो टेंजेंट टू अ सर्कल है इज़ परपेंडिकुलर. वो परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है.
अभी गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस, किसके परपेंडिकुलर है, रेडियस के, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कहाँ पर होगा परपेंडिकुलर, अब ये टेंजेंट तो कहीं भी परपेंडिकुलर हो सकता है, इसलिए उन्होंने हमें पर्टिकुलर बताया एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मीन्स रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन किस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि हमने ए पॉइंट लिया है। तो हम ले लेते हैं, टू प्रूव ओ ए विच इज़ रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी विच इज़ द टेंजेंट, ये हमें प्रूव करना है। हम इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे, टेक अ पॉइंट आर, वेयर, कहाँ पर लिया है हमने ये पॉइंट, ऑन द टेंजेंट, टेंजेंट के ऊपर लिया है, ऑन द टेंजेंट intersecting wait a minute, so take a point R on the tangent। अब टेंजेंट पर तो यहाँ भी हो सकता था जहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो इसलिए हम स्पेशली बताएंगे आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के ऊपर नहीं लेना, आउटसाइड लेना है, चाहे वो हम यहाँ ले लें चाहे यहाँ। intersecting the circle at point, now join OR intersecting the circle at point P, तो ये भी हम करेंगे, join OR, ये लाइन भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, तो इसे हम ठीक कर लेंगे, आउटसाइड द सर्कल जॉइन OR को ज्वाइन करेंगे। जब OR को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन सेगमेंट कहाँ से इंटरसेक्ट होगी, इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट पॉइंट P, इस पॉइंट पर, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ, प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में बेटा क्या स्टार्ट करेंगे हम, प्रूफ में लेंगे सबसे पहले, यू कैन सी, आप खुद ही देख के बताएं OP और OR में कौन सी लाइन ग्रेटर है। ऑफ कोर्स हमें दिखाई दे रहा है OR इज़ ग्रेटर एंड OP क्या है, छोटी है। वैसे भी अगर 5 रेडियस है तो क्योंकि ये बाहर है लाइन तो 5 से बड़ा आएगा, तो कौन सी छोटी दिख रही है, OP और OR में कौन सी लाइन दिख रही है छोटी, OP, तो हम लिख लेंगे, तो प्रूफ में लिखेंगे OP इज़ लेस देन OR, OP इज़ लेस देन OR। यहाँ पर OP को हम रिप्लेस कर सकते हैं, OP जो कि आप देख रहे हो क्या है, रेडियस है, दिस इज़ ऑल्सो द रेडियस, ये रेडियस है, तो OP क्योंकि बिकॉज OP इज़ इक्वल टू OA, ये भी रेडियस है, क्योंकि सेंटर और सर्कल को टच करने वाली लाइन क्या होती है, रेडियस, OP, और OA भी रेडियस है, विच आर बोथ इक्वल टू द रेडियस। तो हम OP को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, OA से, तो मैं यहाँ OP की जगह लिख दूँगी OA इज़ लेस देन OR। तो मैंने क्या दिखा दिया कि अगर OP OR से छोटा है तो OA भी क्या होगा, OR से स्मॉलर है। तो इसी तरह मैं बहुत सारे पॉइंट्स लेके दिखा सकती हूँ कि ऐसे कोई भी लाइन ले लें, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर OA स्मॉलर है OR से तो आई कैन राइट दिस इम्प्लाइज OA इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OA कैसा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, एंड इफ इट इज़ शॉर्टेस्ट, तो आपको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो दिस इम्प्लाइज OA इज़ परपेंडिकुलर टू AB, सो दिस इज़ योर रिजल्ट। सिर्फ 4 लाइंस का रिजल्ट है। सबसे पहले क्या करेंगे, OP इज़ स्मॉलर देन OR, एक लाइन यहाँ पर हम और ऐड करते हैं दैट OR इज़ इक्वल टू OP प्लस PR, लेकिन मैंने आपको वो भी शॉर्टकट करवा दिया, आप फिगर से देख के कर सकते हैं कि OP इज़ स्मॉलर देन OR, बट क्योंकि OP रेडियस है सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस रेडियस, सो वी कैन रिप्लेस OP बाय OA, सो OA इज़ स्मॉलर देन OR, दिस इम्प्लाइज OA इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इम्प्लाइज अगर ये शॉर्टेस्ट है तो दैट मीन्स OA इज़ परपेंडिकुलर टू AB। अब इसे हमने शॉर्टेस्ट कैसे मान लिया, क्योंकि अब हम कोई भी पॉइंट अगर और लेते हैं, टच करने वाला तो एक ही पॉइंट है, टेंजेंट को टच करने वाला A, इसके अलावा तो कोई भी मैं मार्क करूँगी वो क्या हो जाएंगे, आउटसाइड द सर्कल होंगे। कोई भी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होगा वो रेडियस से क्या होगा, बड़ा ही होगा, दैट मीन्स रेडियस OA is always perpendicular to the tangent. So I hope the concept is clear to you. Note down this in your notebook also. So now in my next video we will do exercise 10.1 using this concept. Now remember the concept that radius is always perpendicular to the tangent at point of contact. So thank you.